योर लाइफ इज योर बिगेस्ट लाइफ कोच। कोई 27 साल का या कोई 73 साल का लाइफ कोच आपको आपकी लाइफ के बारे में 100% नहीं बता पाएगा। मैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला ऐसा नहीं हो कि हाँ बस हर रोज ऐसे बैठे रहो, ये वो विजन करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। शाहरुख खान ने भी एक डायलॉग मार दिया, जो कुछ नहीं करते कमाल करते। तो जिनके लाइफ में हो जाता है वो ये बोलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेनजीज स्नैपचैट पे सेक्सटिंग करते हैं। सब लोगों ने किया होगा अपने फॉर्म में। तो आप जब जनरेशनल हिस्टोरिकल जाओगे ना, तो हम सब ने वो सब किया ही है। बट हमको जब वो नेक्स्ट जनरेशन का देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। नहीं, वो अपने लेवल में अपनी जनरेशन में उतना ही कर रहा है जितना वो कर सकता है। इफ आई हैव टू रिलेट दिस विद जेनजीज ऑफ टुडे, वी वर कंज्यूमर्स ऑफ टेलीविजन, वी वर कंज्यूमर्स ऑफ वॉकमैन, इफ यू रिमेंबर। आई फील दैट एवरी जनरेशन हैज दैट ईज ऑफ कन्वीनियंस इन कंजम्पशन। वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कंजम्पशन अपने भलाई के लिए कर रहा है या नहीं। I wanted to ask you about your wife. We have known each other since 2013. I had nothing when she was here. And I see you got emotional, so that says it all. When there is nobody around you to support you, when there is nobody who understands you, when there is nobody in your life who actually understands what you're trying to do for the next 10 years, you just have to go all chips in like this. So there is Delhi School of Internet Marketing. वो कोर्स उनका कुछ तब 55,000 का था। अब वो एक महीना चला, दूसरे महीने में जब दूसरा EMI भरने की बात आई, तो EMI नहीं भरा हुआ था, उन्होंने मेरे को निकाल दिया। तो स्टार्टिंग ऐसे ही हो रहा है कि जहाँ से निकाला है वहाँ पर जाऊँगा तो सही वापस। Welcome to the new episode of Insights with Midas. I'm Pooja Shah, CEO and founder of Midas School of Entrepreneurship. Today I'm extremely excited to welcome our guest, who today is a star in the field of digital marketing, social media, Instagram, TikTok, Snapchat, you name it all, you will have him present in most of them. And in fact, with millions of followers. His energy, his vibrant presence, and of course, building a personal brand from nothing is what Digital Pratik is known for. I'm extremely excited to hear his story unfold and also understand more about his community, Zor Parivar, that has really changed momentum of businesses today. I'm excited to make this communication with him. Please watch till the end, learn a lot from him, and understand what's really happening in social media, in the AI world, and with content creators. A very warm welcome, Pratik. I think it's been such a pleasure having you on campus, meeting and interacting with the Midas students. And today, I think the prime focus of having this podcast is to know you as a person, to know you as someone who's built such an amazing brand around him. And what I would love to compliment you on is the energy that you walk in with. So my first thought today in the morning when I woke up was, I want to ask Pratik, who are you at the core? First of all, thank you so much for having me at Midas. And I'm an open book, and I always tell people that जो आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा होगा वही आप इंसान जब सामने मिलोगे वैसा हूँ. So at the core, if I would say, then I am just a normal person trying to do or live every second extraordinary for my own self, and in that way I'm just trying to be better 1% every single day for my own self without comparing anybody else. So yeah, I'm just true to my heart, true to whatever I say. जो अंदर है वही बाहर निकलता है, and that's who I am. So were you different when, like a couple of years back, if I can imagine you as a person, and today, have you changed over time? A lot. But when I talk about the principles, probably I am the same. If I constantly self-audit. I have a habit of self-auditing myself. So when I self-audit my past, I go back randomly. I'll close my eyes. I'll go back to first standard where I was in school. I'll go back to 8th standard, 9th standard. So during those days, like when I'm self-auditing now, like first standards at 12th standard, I was
ऑलमोस्ट लाइक द लीडर और द क्लास मॉनिटर जो बोलते हैं, वो हमेशा होता था मैं. देन आई यूज़ टू बी कैप्टन वाइस कैप्टन ऑफ द हाउसेस. देन आई यूज़ टू बी सेंटर वॉलीबॉल प्लेयर. कोई भी स्पोर्ट्स, सब स्पोर्ट्स में होता था. हाइट नहीं है फिर भी लॉन्ग जंप में अच्छा होता था. कंपटीशन में खेलने जाते थे. चेस खेलता था. सो समवेयर डाउन द लाइन व्हेन आई फॉरगेट माई स्कूल डेज, आई रियलाइज दैट या आई हैव बीन समवन जिसको स्टेज में डाल दो वो घबराएगा नहीं. राइट. देन आई वॉज यूज टू बी डांसर. मैं कोरियोग्राफी करता था हमारे स्कूल फंक्शंस को. देन कॉलेज में भी यही रहा है. आई वॉज द सेक्रेटरी ऑफ कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया स्टूडेंट ब्रांच. देन आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ IEEE स्टूडेंट ब्रांच. तो कहीं ना कहीं कॉलेज में भी. एंड नाउ दैट आई एम 3 times ड्रॉप आउट बाई चॉइस, इट्स काइंड ऑफ गलत मोटिवेशन चला जाता है बहुत आजकल के यूथ को. बट आई ऑलवेज से दैट आई वॉज 88% PCM स्कॉलर. एंड देन आई टुक अ ड्रॉप बिकॉज माई डैड गॉट अ पैरालिटिक स्ट्रोक. तो ड्रॉप लेना ज़रूरी नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए. बट अभी ये नॉर्मलाइज हो गया है कि हाँ, जो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं वही उखाड़ लेते हैं. बट ऐसा नहीं है. और शाहरुख खान ने भी एक डायलॉग मार दिया, जो कुछ नहीं करते कमाल करते. तो ये सब मतलब जिनके लाइफ में हो जाता है वो ये बोलते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही करना है. सो आई हैव चेंज्ड अ लॉट विथ रिस्पेक्ट टू माई लर्निंग्स, विथ रिस्पेक्ट टू हाउ आई टॉक, विथ रिस्पेक्ट टू हाउ आई बिहेव. माई 8 years of full-time job has taught me how to communicate well. If I open up my 2013-14 YouTube video, I'll be like, hi, this is Pratik Singh Chudasama. This is day so and so. I am grateful for today. And today when I'm talking, I have a pace. I have that ठहराव बोल सकते हैं. And I also feel at the age of 36, probably I have become 1% more mature than what I was at 26. So yeah, I have changed with good values, which a human should have. बाकी दिल से तो वही हूँ. I get that. And one more thing, like whilst you were talking, so many things were coming in. Yeah, it's a flashback. It's like I always tell people that the sound or the voice sound has the speed of 300 kilometers per hour, right? And light has this 3 lakh or 1 lakh kilometers per second or something. I don't exactly remember, but that's a combination which goes in the head. It is like the light speed, but it comprehend with the sound speed. So I literally cannot just put on the thoughts which I'm having right now, but I try to do that in the simplest format. Correct. And one of the things that also I wanted to pick up on was the dropout bit. Yeah. A lot of students today are choosing to drop out and go towards their passion, do what they love doing. And in fact, Midas, the maximum students that come are running behind their passion. And if you noticed yesterday, nobody was shocked that you are a dropout. Of course, they know a lot about you, but the fact is that many of them have chosen not to study ahead and start their businesses. So I wanted to understand that the creativity, the passion, the energy, was it something that you were born with, or has it happened? Not at all, not at all. I was never a born energetic person. In fact, probably I've never, maybe I don't remember, but vaguely I might have said once online, but I've never said this publicly. I'm not just a college dropout, I'm also a first standard dropout. So in first standard, we were expecting my sister. And because my dad and I were alone, and I used to cry every day when my dad used to put me at school. I used to cry every day, and somehow kids used to bully me, and I used to cry. At that point in time, I was not that guy. I was very shy. I was this guy, right, who was used to cry. A crybaby, you can say. And then I don't know what happened during 6th standard or something. कुछ तो मगजमारी हुई थी, स्कूल के बच्चों में झगड़े होते ये वो. एंड देन पापा ने मेरे को बोला कि ये नहीं चलेगा ऐसा, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड समथिंग चेंज. वो मुन्ना भाई में जो से संजय दत्त को केमिकल इम्बैलेंस हो गया था, केमिकल लोचा हो गया था. मेरे अंदर कुछ अच्छा हो गया हुआ है. And since that day, probably I've never gotten afraid of anything. I'm very very कि ये करना है तो बस करना है मेरे को. And then I just go all chips in without worrying about whether I'll be succeeding or not. So I just go all chips in. And then one incidence of this Navratri Garba during probably I was in 7th standard. I used to still be shy for dancing. एंड इन द सोसाइटी जब वो गरबा होता था, पहले बहुत सोसाइटी में ही होता था. आज जब ये सब बाहर हो रहा है क्लब्स में, पहले नहीं होता था. सो 7th स्टैंडर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट 2002, 10th 2005, so yeah 2001 2002. एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को नीचे से देख लिया. मैं गैलरी से देख रहा हूँ, नीचे गरबा हो रहा है. उसने मेरे को देख लिया, वो घर पे आके मेरे को खींच के ले गया, एंड उसने मेरे को डाल दिया वो सर्कल में.
अब पता नहीं क्या हुआ, माता जी अंदर आ गए या कुछ भी हुआ, मैं गरबा करना शुरू कर दिया एंड मेरे को किसी ने सिखाया नहीं है, बट आई यूज टू देन जस्ट विन कॉम्पिटिशन्स इन द सोसाइटी इटसेल्फ, आई यूज टू विन प्राइज एंड ऑल. सो ऐसी 3-4 इंसिडेंसेस ऐसी लाइफ में हुई है जिसकी वजह से पता नहीं क्या हुआ, दैट समथिंग शिफ्टेड ओवर हियर एंड आई बिकेम फियरफुल, आई बिकेम लाइक एंथुजियास्टिक, एडवेंचरस. मेरे को स्पोर्ट्स करने का मन होता है, ये वो. सो नई नई चीज़ें एक्सपीरियंसेस करने का मेरे को फिर कोई फियर नहीं रहा. सो दैट प्रोबेबली ब्रॉट मी मोर एंड मोर एनर्जी, बिकॉज व्हेन यू आर somebody who wants to always be curious about new things, you tend to become adventurous. एंड उसी के चक्कर में आपको वो एड्रेनलिन रश आता रहता है एंड देन शायद पता नहीं फिर लोग आपको बोलते हैं कि आपकी इतना एनर्जी कैसे आया, बट यू डोंट रियलाइज दैट यू आर जस्ट बीइंग यू एंड बीइंग दैट 1% बेटर every single day, and that's how it is. So you had these multiple incidences, maybe two, Yeah, three that yeah. have shaped you as a person. And one very important thing which happened since 2013, I would say, in 2013 or 11, Vishen Lakhiani's Mind Valley's founder Vishen Lakhiani, his debut keynote was there. Happiness is the new productivity. If you search on YouTube, there is a video. I guess it's a 30 or 40-minute video, and he won the best keynote speaker as the debut, while Richard Branson and all probably were there alongside him, and he won that. And I saw that entire video, the way he was talking, I always used to dream that the way he is having that calmness, maturity, वो ठहराव उसके आवाज़ में, and वो स्टेज पे भी नीचे बैठ गया, वो बैठ के बात कर रहे हैं सब लोगों के साथ. एंड देन आई ऑलवेज यूज्ड टू ड्रीम दैट. एंड इन 2022 व्हेन वी डिड जोरदार इवेंट इन अहमदाबाद, आई वाज होस्टिंग एंड आई लिटरली विदाउट रियलाइजिंग आई वाज सिटिंग ऑन द स्टेज एंड देन आई रियलाइज दैट ओ फाइन, आई ऑलवेज ड्रेम्ट ऑफ इट, आई ऑलवेज विजन्ड इट. बट या देन मैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला ऐसा नहीं हो कि हाँ बस हर रोज ऐसे बैठे रहो, ये वो विजन करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ. बट या आई हैव दैट समथिंग, वो सीड अंदर वो प्लांट हो जाते हैं एंड देन इट बिकम्स ह्यूज fruitful tree. तो वो and then 2015 से obviously Gary Vaynerchuk just came in my life with a random video, and since then I'm consuming him a lot. तो I feel that I'm a little bit mixture, क्योंकि इतना आप consume करते हो ना, whatever goes between 6 inch over here shapes you a lot is what I believe. तो मैंने बहुत कंज्यूम किया है, बहुत स्ट्रगलिंग डेज में भी मैंने चार्ट पेपर ऐसे दीवार पे लगा दिए हैं और उस पर मेरे फोटोज़ भी है. शायद पता नहीं ये कब एडिट होगा तो इसमें हम यहाँ पर दिखा भी सकते हैं. व्हाइल आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, वो अफर्मेशन सारे चार्ट पेपर पे लिखे हुए हैं. सो मेरी दीवार पे कहीं दीवार नहीं दिखती थी, वो चार्ट पेपर दिखते थे. तो मेरे आसपास सब पॉजिटिव अफर्मेशंस, वो जो स्टिकी नोट्स वहाँ पर लगे हुए वैसे ही चार्ट पेपर्स लगे हुए थे. सो आई ट्राइड टू बी इन दैट जोन जहाँ पर मेरे को और कुछ दिखे ही नहीं. वो घोड़े को यहाँ लगा देते ना, वैसे मैं हो गया था. Because when there is nobody around you to support you, when there is nobody who understands you, when there is nobody in your life who actually understands what you're trying to do for the next 10 years, you just have to go all chips in like this. So yeah, वो energy ऐसे शायद आ गई है, because that's how you grow. Focus is what drives you. Yeah. You're, like I'm hearing you and you're constantly like मैं ऐसे ही था, I just wanted to do what I had to do. And probably I'll say this in 2035 probably 2025 में ये बोल रहा हूँ, but 2035 में यही बोलूँगा कि I was so less energy or low enthusiasm guy in 2025, because that is what I'm telling now for 2020 or 2015, right? But 2015 में मेरे को लगता था कि यार मैं बहुत solid मार फाड़ कर रहा है, मेरे को ही इंग्लिश आता है. but that's how you grow, you evolve. Right. Something that I wanted to also talk to you about was that you seem like a person who's very, very rooted in his values, his traditions, culture. Conversations will always go back to the fact that you come from a small village. Talk about your parents with so much love. Can you talk something about how you've kept in touch with that? So I am born in Madhavpur, which is in Porbandar district of Gujarat, but brought up in Ahmedabad, in a very lower middle class family. तो मेरे पापा का स्क्रीन प्रिंटिंग का छोटा सा बिजनेस था. अब उसी में हर एक आप पेरेंट्स, आपके भी पेरेंट्स होंगे ना, तो आप कभी पूछना कि पापा आपका गोल्डन पीरियड कब था. वो हमेशा, वो कितने भी सक्सेसफुल होंगे ना, उनका एक गोल्डन पीरियड तो हमेशा रहा होगा जहाँ पर वो पीक पे आए होंगे. अब वो पीक से वापस नीचे आए, ऊपर गए, क्या हुआ, वो उनका स्टोरी होता है एक. बट एक गोल्डन पीरियड होता है. तो मेरे पापा का भी कुछ 5-6 साल का एक गोल्डन पीरियड आया था वो टाइम पे. एंड ड्यूरिंग दोज टाइम्स आई रिमेंबर दैट पापा ने शायद मेरे को कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया था. एंड उनका मैं हमेशा एक
ग्रैटिट्यूड मेरे लिए, मतलब माँ बाप के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड ही होता है, बट स्पेसिफिक चीज़ें अगर बात करूँ तो एक चीज़ जो है जब मतलब आज मैं 36 का हूँ, तो व्हेन आई वाज अबाउट टू गो इन स्कूल, तो वो ज़माने में एवरीबडी इन आवर फैमिली वाज गुजराती मीडियम स्टूडेंट। तो इंग्लिश में कोई नहीं पढ़ा है, मेरे पापा मम्मी को इंग्लिश नहीं आता है, किसी को नहीं आता है। सो उनके क्लाइंट थे, वो स्क्रीन प्रिंटिंग करते थे, विजिटिंग कार्ड छापते थे। तो एक उनके बलदेव अंकल करके, मैंने आज पहली बार उनका नाम कोट किया है पब्लिकली, बलदेव अंकल करके उनके क्लाइंट थे एक। उनको उन्होंने पूछा, क्योंकि बाकी सब ने बोला कि आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आपके बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएगा कौन, क्योंकि वो टाइम पे कुछ नहीं था, ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 1994 या 5 की बात कर रहा हूँ मैं। सो तब उन्होंने बोला कि देखो, अगर आपको नहीं आता है और वही कंटिन्यू करना है तो इसको गुजराती में पढ़ा दो, अगर आपको फ़िक्र नहीं है, वो कर लेगा ऐसा कॉन्फिडेंस है, तो इंग्लिश में पढ़ा दो। मेरे पापा को पता नहीं क्या हुआ, उनको भी कभी केमिकल इम्बैलेंस तब हो गया होगा, उन्होंने मेरे को इंग्लिश में डाल दिया। एंड प्रोबेबली वो जो उनका फियरलेस डिसीजन या फ्यूचर में क्या होगा, वो उनके खून में शायद जो होगा, उसकी वजह से शायद मेरे को ब्लड में आया। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग कि मैं जो भी हूँ, तो शायद उनके डिसीजन, उनके हार्डवर्क, वो 3-3 4-4 नाइट्स हम उनको देख नहीं पाते थे, उतना वो काम कर लेते थे, क्लाइंट्स का काम इतना होता था तब। तो उसी के चक्कर में मैंने देखा है कि उनका जो हार्डवर्क है वो मेरे पेरेंट्स, उसमें से पापा का मेरे को ये आया है। मेरे मम्मा पेशेंस, उन्होंने जो अपनी लाइफ में वो टाइम से जो आया, शी इज़ अ होम मेकर, एंड उन्होंने अपने लाइफ में सैक्रिफाइसेस के अलावा कुछ किया ही नहीं है। दैट डजंट मीन दैट फादर्स डोंट सैक्रिफाइस, ये वो मदर फादर वाला डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बट उनका हर एक का इंडिविजुअल एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो वो मदर ने वो सैक्रिफाइसेस एक अलग ही लेवल पे किया है, तो उनका जो पेशेंस एंड सैक्रिफाइस है शायद वो मेरे को आया है। एंड द रीज़न आई एम टेलिंग यू इज़ बिकॉज आज आई एम 36, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन टू लेट 20s, एंड लॉट ऑफ पीपल टेल मी, यार वो थोड़ा सा तो आगे चला गया, तू क्यों पिछले 2 साल से नहीं गया? मैं बोला दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज एक्चुअली लिविंग माई पर्सनल लाइफ, राइट। तो मेरे को मालूम है कब बिजनेस में ऐसे कर देना है, कब पर्सनल लाइफ में ऐसे करना है, बिकॉज देयर इज दिस लाइफ बुक ऑफ जॉन बुचर जहाँ पर उनका 12 कैटेगरीज देते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू डू इज the way I want to be Jordar in my own life and try to preach that same thing and teach that same thing is just try to balance. There is nothing like balancing. Right? 100% balance कभी नहीं होगा. Try to balance in all phases, like fitness, relationships में भी mother, father, आपके spouse, girlfriend, boyfriend, आपके sisters, cousins. All I'm trying to do is that. In doing that, I do it from here. मैंने हमेशा मैं कभी मंदिर नहीं जाता हूँ, बट यहाँ पर जय माता जी का टैटू है। सो इट्स लाइक द वेरी एक्सट्रीम्स विच आई लिव इन, राइट। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं अगर मेरे पापा मम्मी के लिए प्योर इंटेंट से जो भी कर रहा हूँ दुनिया में कर रहा हूँ, जिसके लिए शायद मैं उनके साथ नहीं रह रहा हूँ अभी, लेकिन वहाँ जाता हूँ, बाहर ट्रैवल करता हूँ, प्रैक्टिकली हो जाता हूँ कि बिज़नेस के लिए कुछ करना है, तो मैं सोचता हूँ कि यार उनकी सेवा जो कर रहा हूँ उसी में सब कुछ आ गया, तो मेरे को मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो विद दैट प्योर इंटेंट, whatever I try to do is the way I try to keep in touch with them, because आज के टाइम में when you are so much busy in your life, you're trying to do something new which probably your generations have not done in your life or in your families, कोई ने किया नहीं है, आप करना चाहते हो, तो you have to do something which they have never done. So अगर पूरे फैमिली ने हमेशा फैमिली के साथ रह के कुछ किया है, तो आपको फैमिली से थोड़ा सा दूर होके कुछ तो करना पड़ेगा, तभी वो रियलाइज़ होगा। तो जब मैंने कॉलेज में ड्रॉप लिया था, nobody was with me, like nobody understood me. सब लोगों ने वो टाइम पे 2009 में यही बोला था, इंक्लूडिंग ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, कि ये लड़की के चक्कर में या तो ये ड्रग्स में पड़ गया है, या तो ये मतलब ये ओटीवार हो गया, गुजराती में एक वर्ड है ओटीवार थी गो, राइट। बट देन 10 years down the line, all of them cried when they came to Jordar event. So that's how it is. I try to keep in touch with them without being with them as well. But मैं यहाँ से मैं किसी और का नहीं सुनूंगा। मतलब कोई अगर मेरे फैमिली मेम्बर भी बोल देगा ना कि यार पापा मम्मी के साथ तो तू अभी नहीं रह रहा है, 1 महीने से दुबई है, तो क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई तेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं प्योर इंटेंट से कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ आई एम ट्राइंग टू बी इन टच विद देम विथ ऑल प्योर इंटेंट, प्योर हार्ट। बाकी ऊपर वाला है, अगर कुछ गलत कर रहा हूँगा तो वो उठा लेगा, यही मैं बोलता हूँ हमेशा। If I were to ask you, describe yourself in 3 words right now, today, Prateek, for the world, what would those words be? I'm somebody who learns, applies and shares. I learn something new every single day in my life. Then I try to apply that something new which I've learned in my life every day. And then I try to share that with other people, whatever I've learned and applied. So I'm a very, very practical, authentic Jordar person. So if I have to say learn, apply, share, I am practical, authentic and यहाँ पर जोरदार person.
दैट्स हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ. मैं और कुछ, मैं अभी भी जितना भी हमारा ये कॉन्वर्जेशन हुआ, आई जस्ट इमीडिएटली आई डोंट नो हाउ माई माइंड गेट्स वायर्ड. आई इमीडिएटली गो इन टू माई पास्ट. वाई? बिकॉज आई विल ओनली शेयर वट एवर आई हैव लर्न एंड अप्लाइड. मैं, क्योंकि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है इतनी सारी, तो मेरे को वो पता ही नहीं है कि किसने क्या लिखा है लाइफ के बारे में. ये मेरी लाइफ है, मेरे बारे में. बिकॉज योर लाइफ इज़ योर बिगेस्ट लाइफ कोच. कोई 27 साल का या कोई 73 साल का लाइफ कोच आपको आपकी लाइफ के बारे में 100% नहीं बता पाएगा. बिकॉज दे डोंट नो योर एंटायर लाइफ. दे डोंट नो वॉट यू हैव डन इन द मॉर्निंग टुडे. प्रोबेबली यू विल से दैट कि हाँ मैंने आज सुबह ये किया था, बट 23 साल पहले सुबह क्या किया था मालूम नहीं है ना उनको. इट्स जस्ट यू हु वुड ट्राई टू सेल्फ ऑडिट and then you take advices from people, right? In that way you try to grow and evolve, but then I do it with 100% accountability. तो मैं किसी को भी blame नहीं करता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ. वो मेरी win और loss दोनों आ गई. Take us back to the time when you started content, building your brand, because you did it at a time when the world did not understand it. Very similar to Midas again. We started this institute when people did not know what entrepreneurship is. And since you're from Gujarat, I'd love to share this bit that last 2-3 साल से तो गुजरात के बच्चे आ रहे हैं. But till then it was always like ये कोई हमें नहीं सिखा सकता है धंधा कैसे करना है, because मेरा बच्चा बिजनेस में आएगा, मैं ही उसको सिखाऊंगा. Things have changed, but you did something unheard at a time when nobody understood it at all. Yeah. So take us back to that journey. Sure. So I was, so 2010, I started my first ever call center job after taking 3 times dropout. Call center job मैंने किया 4 साल, 2010 to 2014. So during those 4 years, डिजिटल मार्केटिंग ये सब आने लगा था इन द वे कि आप इंटरनेट पे जब जाते हो तो आपको बैनर एड्स दिखते थे. सोशल मीडिया इतना अभी नहीं था, तो वो बैनर एड्स में वेबसाइट्स पे जाते थे, तो वेबसाइट पे बैनर दिखता था हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन या हाउ टू मेक एडिशनल $3,000 to $5,000 नेक्स्ट मंथ और इन नेक्स्ट 30 days. ऐसे बैनर्स ने थोड़ा सा अपने को प्यार दिलाया कि ये क्या है भाई, क्योंकि अपना 14,000 का सैलरी है और यहाँ पर $3,000 की बातें चल रही है, 3 लाख रुपए की बातें चल रही है, ये क्या चक्कर है. That's how we got curious and I got clicked. मैंने क्लिक किया, आगे गया. That's how I started learning things. 2014 में मेरा पहला डिजिटल मार्केटिंग जॉब लगा. क्यों? क्योंकि वो जो 4 साल है ना, उसमें मैं जब भी फ्री टाइम मिलता था मैं साइड हसल करके ये सब सीख रहा था. ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग. सो आई यूज्ड टू रन. मेरा फर्स्ट एवर डोमेन विच आई बुक्ड वॉज imeandyouareawesome.com. And how On do you which- think of all this? Because you are awesome. I always used to say, hey, you are awesome. I never ask how are you. I always say, hey, जोरदार मौजमान है. In Gujarati as well. Why do you want to ask them? Because उनका दिन अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है आपको मालूम नहीं है ना. अगर बुरा गया है, वो गलती से बोल दिया यार आज तो ये हुआ, तो आपको कॉन्वर्जेशन सुनना ही पड़ेगा. Yes. उससे अच्छा है उसको ही पहले पॉजिटिविटी में डाल दो, भाई मौजमान है. अब वो नहीं भी होगा तो हाँ, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा, एंड देन द कॉन्वर्सेशन गोज इन टू अ डिफरेंट डायरेक्शन फॉर बोथ ऑफ यू, राइट. सो आई यूजुअली ट्राई टू डू दैट. बाकी हाँ, किसी किसी को पूछना पड़ता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, ये वो, बट देन वो आपको पता भी चल जाता है कि ये अच्छा है या नहीं अभी. सो इन दैट सेंस आई स्टार्टेड शेयरिंग ग्रैटिट्यूड, क्योंकि और कुछ पता ही नहीं था ना. मतलब जैसे मैंने बोला, मैं शायद पहले से ऐसे वायर्ड हूँ दैट आई कुडंट शेयर समथिंग विच आई नेवर लर्नड और अप्लाइड. तो मैं पूरे दिन में, जैसे कल भी मैं इनको बता रहा था कि अगर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है ना, तो पूरे दिन में आपने क्या किया है वो खाली 5 मिनट में बोल दो. अगर शाय हो तो ऑडियो में ऐसा रिकॉर्ड कर लो, राइट. दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग. कि ऐसा सेल्फी वीडियो ले लेता था या कुछ भी, मतलब लैपटॉप के सामने बैठ जाता था और मैं रिकॉर्ड कर लेता था. हाय, सो टुडे आई डिड दिस सेल्स, टुडे आई हैड अ कॉल विथ दिस सिस्टर, टुडे आई हैड अ कॉल विथ दिस फ्रेंड. और आज भी या देयर आर ब्लॉग्स राइट नाउ, देयर आर ब्लॉग्स. क्योंकि पैसे नहीं थे ना नेमचिप GoDaddy में से बुक करने का, तो मैंने, जैसे आपको पता नहीं, आपको पता होगा कि नहीं, देयर इज समथिंग नोन एज फ्री डोमेन, जहाँ पर मेरा डोमेन है 21daysgratitude.wordpress.com. क्योंकि WordPress.com ऐसे करते हैं तो वो फ्री डोमेन मिलता है, आपको डोमेन खरीदने की ज़रूरत नहीं है. तो तब पैसे नहीं थे, तो ऐसे में मेरे ब्लॉग्स है आज भी. 21daysgratitudechallenge.wordpress.com ऐसा कोई तो वेबसाइट है, आप जाओगे तो मिलेगा. या तो आप डिजिटल प्रतीक या प्रतीक सिंह चुड़ासमा ग्रैटिट्यूड चैलेंज 2014-13 लिखोगे तो आएंगे, साइट्स आएगी, ये सारा कुछ है. तो ऑल आई यूज टू डू इज रिकॉर्ड. एंड यूट्यूब था तो बस वही हॉरिजॉन्टल वीडियो, तब वर्टिकल कुछ था ही नहीं. स्नैपचैट वगैरह सब कुछ वो 2015-16 में आया. ये बात कर रहे हैं हम पहले की, कुछ नहीं था. तो ओनली ब्लॉगिंग, तो मैं लिख देता था
और ये कोई टूल्स नहीं थे जो आपको वॉइस को ट्रांसक्राइब, सब कुछ लिखना पड़ता था। एंड आई वाज अ कॉल सेंटर गाय. So in call center there is a prerequisite that your typing speed should be bare minimum something. So my typing speed at that point in time was 95 words per minute. So वो फटाफट लिख लेता था मैं. It was because 4 कस्टमर के साथ आप बात कर रहे हो एक साथ, right? So 95 words per minute. So I used to blog. मैं लिख देता था कि मैंने क्या बोला है वीडियो में. वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देता था, उसको एम्बेड कर देता था यहाँ पर, लिख लेता था. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. सो वो साइड हसल में पता चला कि हाँ ये ब्लॉग्स होता है. देन ऑप्टिमाइज प्रेस करके एक टूल आज भी है जो आपको लैंडिंग पेज बना सकते हैं. तो मैंने लैंडिंग पेज बनाना सीख लिया साथ में. एंड दैट आई टुक एज अ पोर्टफोलियो टू गिव इंटरव्यूज फॉर डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स. वो 2014 में मेरा पहला डिजिटल मार्केटिंग जॉब लगा. वो जॉब इंटरव्यू में मेरे पास CV नहीं था. So you've never done a course, nothing? No, I'll come on that part. I'll come on that part. तो 2014 में ये मैंने CV नहीं था मेरे पास. क्योंकि वो जितने भी CVs में फ्रेंड्स के पढ़ता था वही है कि बैडमिंटन अच्छा लगता है, ये वो सेम फॉर्म में. मेरे पास इसमें से एक भी मेरा नहीं है, कुछ नहीं है. मैं किया ये कंपनी का रिवर्स इंजीनियर जहाँ पर मेरे को इंटरव्यू देना था. वो कंपनी का पेजेस कुछ नहीं था. मैंने उनके लिए फ्री में पेजेस बना लिए मेरे ही टूल में अंदर. एंड वो ही मैंने उनको इंटरव्यू में बताया. हायर मी और फायर मी, दिस इज़ वॉट आई हैव. सिंपल. एंड दे हायर्ड मी, राइट. क्योंकि उनके लिए मैं पेज बना के चला गया. वो सोचने लगे कि ये बंदा बना के आ गया है, अब मेरे लिए नौकरी मांग रहा है. Correct. जो मेरे कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो उन्होंने पेज नहीं बनाया है और ये बंदा पेज बना के आ गया. सो दैट्स हाउ आई गॉट माई जॉब. सो प्रैक्टिकलिटी पे ही वो खेला है मैंने हमेशा. एंड देन मूविंग फर्दर टू लर्न न्यू थिंग्स. विक्स ट्राइजियस करके एक बंदा था तब, बहुत आगे चला था तब, आज भी है बट ही इज़ नाउ नॉट डूइंग दैट मच. बट विक्स ट्राइजियस तब बहुत बड़ा हो गया था इन नेटवर्क मार्केटिंग बट डिजिटल मार्केटिंग फेज में. तो उनके पास से मैंने बहुत सीखा. उनके कोर्सेज वगैरह ये वो लेके, फ्री वाले, क्योंकि पेड वाले $5,000 वाले थे सारे. तो फ्री से जितना सीखा मैंने सीख लिया. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज़ दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग, DSIM. कुणाल चौधरी उनके फाउंडर थे. तो उनका मैंने एक ऐड देख लिया था. वो 2014 की बात कर रहा हूँ मैं. और वो जब जॉब में लगा था तब, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए वो कोर्स उनका कुछ तब 55,000 का था. ऑनलाइन 3 महीने का या 4 महीने का प्रोग्राम होता था वो. तो पैसे तो नहीं थे ऑब्वियसली. तो मेरे रूममेट्स जो है, जो जिनके घर पे यहाँ पुणे में रह रहा हूँ, वो मेरे रूममेट्स थे तब. सो दे आर दैट क्लोज टू मी. तो उनके पास से मैंने बोला, एंड दे वर डूइंग वेल इन IT जॉब्स. सो मैंने उनको बोला कि कैन आई लोन सम अमाउंट, मेरे लिए ये भर दे, मैं तेरे को चुकता कर दूंगा. उसने बोला ठीक है. अहमदाबाद. तो उसने मेरे को वो उसके क्रेडिट कार्ड से पहला हफ्ता 15,000 का पे कर दिया. ठीक है. अब वो 1 महीना चला. दूसरे महीने में जब दूसरा EMI भरने की बात आई, वो मेरा फ्रेंड तब शहर में नहीं था, तो EMI नहीं भरा हुआ था. उन्होंने मेरे को निकाल दिया क्लास में, वहाँ से ऑनलाइन क्लास में से निकाल दिया. बिकॉज ऑनलाइन क्लास है तो आपकी लिंक होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है. सो मैंने उनको बोला प्लीज़, मैंने रिक्वेस्ट किया, मेरे को नहीं जाने दिया, ये वो फलाना ढिमका. और मेरे जोश टॉक, जो अगर आप यूट्यूब पे मेरा जोश टॉक है वो देखोगे तो स्टार्टिंग ऐसे ही हो रहा है कि जहाँ से निकाला है वहाँ पर जाऊँगा तो सही वापस. तो दैट वॉज माई अ प्योर जिद दैट मैं वहाँ पर जाऊँगा, नौकरी करने जाऊँगा, यही मेरे को नौकरी के लिए बुलाएंगे. सो या समवेयर मैंने पैसे जोड़े, ये वो किया, मैंने वापस कोर्स कंप्लीट किया. बट मैंने कोर्स करने के लिए नहीं लिया. वो मैं कभी कोर्स करने के लिए लिया ही नहीं था. बिकॉज मेरे को बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आती थी. ऑल आई वांटेड टू डू इज़, मैंने जितना ग्लोबली सीखा था ना, इंडिया में कौन क्या कर रहा है वो मेरे को देखना था. सो मैं उसमें घुस गया. एंड दैट्स वेयर लास्ट में जब वो 3 महीने का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा. उन्होंने बोला कि यहाँ जॉब करेगा. 100% वही तो दिमाग में था मेरे. एंड फर्स्ट इंटरव्यू स्काइप पे हो, तब स्काइप था, जूम भी नहीं था, तो स्काइप पे होता था इंटरव्यू. मेरा अहमदाबाद में एक फ्रेंड है, उसके घर पे हम गए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं, लाइटिंग वाइटिंग कुछ भी, इंटरव्यू देने के लिए जगह नहीं थी. तो मेरे फ्रेंड के घर पे गया, उनके डाइनिंग टेबल पे मैं स्काइप पे इंटरव्यू दे रहा हूँ. एंड आई गॉट रिजेक्टेड पहले इंटरव्यू पे. फिर मेरे को वापस कॉल आया कि आपको जो आता है वो नहीं दिखाना है, आप यहाँ ट्रेनर की जॉब के लिए आने वाले हो, तो आप कैसे पढ़ा सकते हो वो बताओ. एंड दे रिक्वेस्टेड, बिकॉज शायद उन्होंने मेरे में कुछ देखा होगा, इसलिए उन्होंने दूसरे इंटरव्यू के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया. दैट्स हाउ आई गॉट देन सिलेक्टेड. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स. ट्रेनर बना, ट्रेनर से फिर मैं प्रोडक्ट मैनेजर बना था फॉर डिजी परफॉर्म इन दिल्ली इटसेल्फ. दैट वाज माय लास्ट जॉब 2018. एंड देन 2018 से फिर फुल टाइम अपना फ्रीलांसिंग इन कंपनीज. सो हाउ डिड द होल पार्ट ऑफ यू बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर happen for you? In the side hustle, in the side hustle itself. It started long back. 2000, I believe 2000
11-12 में मैंने कुछ ना कुछ लिखना कॉल सेंटर के टाइम पे मैंने शुरू कर दिया था. आई वेगली रिमेंबर देयर वाज अ डोमेन jaymataji.wordpress.com एज वेल. देन imeandyouareawesome.com, वो मेरा पहला परचेज्ड डोमेन था, imeandyouareawesome.com. देन baddestmarketeer.in, ये वो बहुत सारे ऐसे लिए थे. तो आई स्टार्टेड विद ब्लॉगिंग, देन अफिलिएट मार्केटिंग थोड़ा ट्राई किया, JVZoo, Amazon, ये क्लिक बैंक, सब कुछ. एंड कंटेंट तो वही, मतलब मैं बोलने वाला बंदा पहले से था, तो आई नेवर परस्यूड ब्लॉगिंग दैट मच. एंड दैट्स वेयर आई वेंट इनटू वीडियोज़ ऑल द टाइम. फिर स्नैपचैट था, जितने भी टूल्स आए, स्नैपचैट, आई डोंट नो इफ दीज गाइज इवन नो, वेरो करके टूल था, पेरिस्कोप करके टूल था, ये सारे में मेरे अकाउंट्स, मैंने वीडियोज़ किए हुए हैं सब जगह. सो पता नहीं, आई ऑलवेज बीन अ डॉक्यूमेंटरी, इसलिए मैं गैरी वी से इतना रिलेट कर पाता हूँ कि डॉक्यूमेंट ओवर क्रिएट जो बोलते हैं. सो आई हैव ऑलवेज बीन डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, एंड दैट्स वेयर आई डोंट गो आउट ऑफ वर्ड्स, क्योंकि मैं वो बुकिश नहीं है मेरे पास. जो पूरा एक्सपीरियंस जो पूरा जिया है वही बोलने का ट्राई करता हूँ मैं. सो दैट्स हाउ इट ऑल वेंट इनटू कंटेंट एज वेल. तो कभी भी कंटेंट शूट करने के लिए शूट नहीं किया है, इट जस्ट हैपेंस. So I think for you all, I mean, most people who are successful today, it's always been a process for them. It's process. Today, a lot of people, so especially the Gen Zs that we call them, are either very, very active on Instagram or probably even on LinkedIn, a few who are beginning to write and share stuff. But most of them are just becoming like stalkers, बस देखते रहते, like करते, share करते, whatever. Yeah. How do you think that attitude should change, and is it really so difficult to be out there for people? No, I believe that that was always the case for every generation, I feel. When I was growing up, there was this TV channel जहाँ पर म्यूज़िक बहुत आता था, 9XM एंड बहुत सारी ऐसे चैनल्स आती जहाँ से म्यूज़िक आता था. तो मेरे को याद है, आई वेगली रिमेंबर कि जब स्कूल की रिक्शा आती थी ना, तो तब वही चैनल पे तब बॉलीवुड के जो न्यू सॉन्ग्स है वो आना शुरू हो जाते थे. अब मेरे को डांसिंग का थोड़ा कीड़ा हो गया था, एक पल का जीना सॉन्ग आया था ऋतिक रोशन का, तब से कहो ना प्यारे में. तो वो मैं खुद ही सीखता था टीवी में देख देख के, लेकिन मम्मी को पता ना चले वैसे. So if I have to relate this with Gen Zs of today, we were consumers of television. Yes. We were consumers of Walkman, if you remember. Yes. मैं नवरात्रि में प्राइस जीता था Walkman, और उसमें मैं कैसेट डालता था. वो कैसेट कैसे, उसमें क्या करता था, वो रिकॉर्डिंग वाली कैसेट आती थी. तो जब भी टीवी में सॉन्ग आता है ना, उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता था सॉन्ग को, ताकि वही सॉन्ग जब मेरे को बचाना है मैं बजा सकता हूँ. तो वो Walkman आता था. तो probably we have been always a consumer of some form of content in some shape or some, but वो जो ease of consumption था ना, वो अब ज़्यादा हो गया है. But I feel that every generation has that ease of convenience in consumption. वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कंजम्पशन अपने भलाई के लिए कर रहा है या नहीं. बिकॉज आई विल बी वेरी फ्रैंक इन सेइंग दिस, जब ब्लू फिल्म्स आई थी तो वो मैं जब ग्रो अप कर रहा था तब CDs में आती थी, फिर DVDs में आई, फिर पेन ड्राइव में हुआ, आज वही सब वेबसाइट्स में हो रहा है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जेन ज़ीज़ स्नैपचैट पे सेक्सटिंग करते हैं, राइट. सब लोगों ने किया होगा अपने फॉर्म में, like everybody has flirted, everybody has done that. All I feel is we all grow up with different ease of convenience in doing things. तो आप जब generational historical जाओगे ना, तो हम सब ने वो सब किया ही है कहीं ना कहीं. बट हमको जब वो नेक्स्ट जनरेशन का देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है. नहीं, वो अपने लेवल में अपनी जनरेशन में उतना ही कर रहा है जितना वो कर सकता है. बट फिर उसमें खराब बच्चा, अच्छा बच्चा, खराब आदतें, अच्छी आदतें, वो सब चीज़ें तो हर एक जनरेशन में है. लाइक मेरे को ओटीवर इसलिए तो बोला था क्यों? क्योंकि वो जो नॉर्म था तब का कि साइंस का बच्चा था तो इसको तो इंजीनियरिंग में जाना ही चाहिए था, इंजीनियरिंग करके अच्छी जॉब लेनी चाहिए थी. वो सोसाइटल नॉर्म जो तब का था, मैंने तोड़ के आगे गया तो मेरे को गाली खानी पड़ी. अब वो 10-15 साल के बाद वही गाली अच्छे शब्दों में और वाह 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 होती है. तो इट्स लाइक दैट ओनली. आज जब स्नैपचैट पे बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, मार्केटर्स डोंट रियलाइज और बिजनेसमैन और मिलेनियल्स डोंट रियलाइज कि स्पॉटलाइट अगर जेनजी को पता चल गया ना, तो उसमें वो अपना फैशन का ब्रांड पूरा खोल सकता है, मार्केट कर सकता है, इफ़ यू नो हाउ टू डू दैट. टिकटॉक जब आया था 2019 इन इंडिया, पीपल वर नॉट रियलाइजिंग, पीपल टोल्ड मी दैट टिकटॉक इज़ फॉर यंगस्टर्स. लेकिन टिकटॉक में मेरा ऑडियंस जो है ना 35+ का था. कैसे मेरे को पता चला? वाई? बिकॉज किड्स ऑफ 35+ ईयर्स
उनके बच्चे होते थे 10 से 18 साल के बीच वाले, ऑलराइट। अब ये लोग मेरे को इंस्टाग्राम में तब डीएम करते थे दैट हे प्रतीक, वी हैव स्टार्टेड फॉलोइंग यू ओनली बिकॉज माई मॉम टोल्ड मी टू फॉलो यू ऑन इंस्टाग्राम। मैं बोला हाउ डज योर मॉम नो मी? वो क्या मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है, मैंने ई बुक लिखी थी 2020 में, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है। उनके मदर ये बोलते थे कि मतलब ये मेरे को ये बोलते थे कि मेरे मदर आपको टिकटॉक पे फॉलो करते हैं, राइट। सो आई एम अ हार्ड कोर प्रैक्टिकल गाय। मैं डेटा और इंसाइट्स के बारे में बात करता हूँ, एंड देन आई टेल द वर्ल्ड दैट यार तुम्हारा दिमाग में ऐसा लग रहा है कि जेंजीज ये कर रहा है, ये कर रहा है। हम जब वही एज ग्रुप में थे ना, तब हम वही कर रहे थे हमारे पापा मम्मी के लिए, हम हमारे हिसाब से करें। एग्जैक्टली, राइट। सो इट्स जस्ट द आई फील दैट कंजम्पशन फॉर इंडिविजुअल needs to be channelized, needs to be made for them in the productive way. अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक इंसान की ही होती है, चाहे वो टीवी देख रहा है, चाहे वो मोबाइल में कोई वीडियो देख रहा है, चाहे वो कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। रेडियो में भी जब सुनते थे तो रेडियो में आप क्या सुनते थे, हमारे फादर्स और वो सब रेडियो में क्या सुनते थे वो मैटर करता था, राइट। फिर पेजर होते थे, तो पेजर में क्या मैसेज आते थे अपने को तो नहीं मालूम है, उनका चल रहा है। एग्जैक्टली, राइट। वन ऑफ माई कजिन्स यूज्ड टू हैव पेजर एट दैट पॉइंट इन टाइम। अब मैं बोला ये भैया, मतलब बहुत दूर का कजिन जो कभी घर पे आते थे तो वो पेजर लेके घूम रहा है, उनका सैलरी तब था 50,000 रुपीज़, एंड आई एम लाइक यार 50,000 रुपये कितना बड़ा होता है, राइट। तो वो पेजर में ऐसे टूट टूट ऐसे बजता था और वो ऐसे ऐसे कुछ कर रहे थे। मैं बोला भैया क्या कर रहे हो? तो ये पेजर है। बोला क्या कर रहे हो? मैसेज कर रहा हूँ। ये तो गजब है, मतलब किसको मैसेज कर रहे हो? मेरे एक कलीग है। हाँ सही है। तो यू नो दैट्स हाउ इट हैपेंड। सो या आई फील दैट कंजम्पशन इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। We all have different perspectives at looking at something, and in the moment somebody thinks of something, somebody thinks of something. अब ये जो सोच रहा है ना उसको लग रहा है कि ये गलत है, ये जो सोच रहा है इसको लग रहा है कि ये गलत है। There is nothing right or wrong. There is your own way of looking at things. So, and if someone wants to start creating content, whatever age, how should one start? You have to be self-aware about your strengths in starting content. Content is in 4 shapes: text, image, audio, video, right? If you are able to do video, the best, because that's the most consumed format of content, right? That doesn't mean that people are not writing books. Of course. People do read books. If I'm not reading book, that doesn't mean that Crossword पे books नहीं आने वाली है या Amazon पे books नहीं आने वाली. People do read books. So it depends कि आपको first of all क्या कर सकते हो, आपकी strength क्या है. For me it was video. अगर आपके पास video का strength है, go on any top platform right now. Be it Instagram, Facebook, YouTube, कहीं पे भी. उस पे समझो कि कौन सा creative format on that platform is working right now. Creative formats on Instagram may be what? Reel, then carousel posts, single image post, stories, right? These are the classified formats. अब reels के बारे में बात करते हैं. Reels is getting the most reach. Carousel is also getting the reach. So now you are trying to understand where the attention is, where people are actually consuming content. अब उसमें आप क्या कर सकते हो वो देखो. अगर आप एक लेखक हो, if you can write, then write carousels. If you cannot write carousels with images, मतलब अगर आपके पास graphical skills नहीं है, आपको Canva भी use नहीं करना है, बहुत lazy हो, all you can do is voice record your thoughts. वॉइस रिकॉर्ड के बाद आप क्या करो, उसी को डिस्क्रिप्ट जैसे कोई टूल में या कोई भी वॉइस टू टेक्स्ट गूगल पे लिखो और कोई भी एआई टूल आ जाएगा, उसमें अपना वॉइस डाल के टेक्स्ट पूरा ले लो. वही टेक्स्ट को आप चैट जीपीटी या क्लॉड जैसे एआई टूल में डाल के एक अच्छा सा कैप्शन बना लो. वो कैप्शन को आप डाल दो अपने ही खुद के पिक्चर में ऐसे करके. And the entire new Instagram page can start like this. Every day in a new cloth, you can have this kind of picture, and that picture will have the caption. Got it. And the page name can be, "Here is my thought for today." That user handle can be, "Here is my picture thought for today." Right? That's how you can start. So not necessary. मैंने ये एकदम हटके एग्जाम्पल इसीलिए दिया है, and पता नहीं, I swear on my parents, I never had this idea. ये आ जाता है अंदर से, राइट? ये हटके एकदम एग्जाम्पल इसलिए दिया, एंड आई कुड हैव सेड दैट हाँ वीडियो शुरू कर दो, स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग इन ऑल, बट हर एक बंदा वीडियो नहीं कर पाता है. सो अगर ये क्रिएटिव आइडियाज़ अगर आप कर लोगे, ये हिट करेगा, बिकॉज पीपल आर नॉट डूइंग इट. लाइक लोग नहीं कर रहे, तो अगर ये करोगे तो आपके लिए एक्चुअली में ईजी हो जाएगा टू ग्रैब अटेंशन ऑफ पीपल. ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है. So that's how you should. Something that I've seen, you often say that document, just don't keep creating. Yeah. And that's something I believe that you use a lot of time. Then you just gave like a full-fledged example. Because that's why I say that I've not just consumed Gary Vee.
आई हैव लिटरली कंज्यूम्ड गैरी वी एंड मैं जिया हूँ, मैं जी रहा हूँ अभी भी. सो इन 2017 when he was talking to a kid and that got on a YouTube video and उसका टाइटल है डॉक्यूमेंट ओवर क्रिएट, लाइक मेरे को बहुत हिट किया कि प्रोबेबली आई एम दैट गाय जो डॉक्यूमेंट कर ही रहा है. सो इट्स सो ट्रू. और मेरे को और बूस्ट मिल गया, राइट? कि जब आपके मेंटर आपको कुछ, जैसे आप बिफोर दिस पॉडकास्ट स्टार्टेड यू सेड समथिंग अबाउट योर गुरु, राइट? एंड दैट गिव यू अ किक कि हाँ ये यार, सो यू फील दैट हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और ये तो होना ही है टाइप, राइट? सो मेरे को वो डॉक्यूमेंट ओवर क्रिएट 2017 में जब वो वीडियो आया, मेरे को लगा यार आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. सो देयर इज नथिंग लाइक फेकिंग इट, बिकॉज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल अराउंड मी वर फेकिंग इट. वो कुछ अच्छे कपड़े, नए कपड़े पहन के मस्त ऐसे स्टूडियो वीडियो बनाएगा, मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ आज भी. मतलब आई जस्ट केम इन, देयर इज नो, मतलब यूजुअली पॉडकास्ट करेंगे तो वो अंदर मेकअप रूंगा, अच्छे करने जाएंगे. मैं आज बाइक में, इसलिए मैं वॉशरूम में गया. मैं, मेरी टीम को मालूम है, वॉशरूम भी नहीं जाता हूँ. आई जस्ट सिट, खत्म. बिकॉज इट्स द वर्ड्स विच आर कमिंग आउट विच वुड बी वैल्यूएबल, नॉट प्रोबेबली माई लुक्स. या इट मैटर्स, इट डज मैटर, बट देन नॉट ऑलवेज. So it's just me. So document over create for me is 100% true. 100%. I also wanted to ask you that there must be times, right, when nothing must be going right. Yeah, every day. So how that's do you tell yourself to continue? There is no other way. Have you ever questioned that, am I in the right place? Not 100%. Probably not in the business. Not in the business. Never in the business or in the work, I would say. क्योंकि business term यूज़ करते हैं ना, तो वो जो जॉब कर रहे होंगे उनको लगेगा कि अब मैं क्या करूँ, मेरे को सवाल करना चाहिए या नहीं. So I would say work. Because I've seen two phases, 8 years of full-time job and 7 years now of my full-time business. So दोनों ही. If I'm working, मेरे work में मेरे को कभी भी, मेरा intuition पे मैं बहुत खेला हूँ, आज भी खेलता हूँ, कल भी खेलूँगा. So I'm very very calculated risk taker. I'm not a just undiscerned risk taker, but yes, calculated risk taker and then very high risk taker. But at the same point in time, relationship की बात करता हूँ, या there is some emotional thing about me that I cannot, at times I question that शायद उनको अच्छा लगेगा, and that is for very limited close one of people, right? That includes a couple of my family members, even my teammates, like this guy who is come all the way from Ahmedabad today, he knows. Like मैं उनका बहुत ख्याल रखता हूँ. अभी वो, मतलब ये पॉडकास्ट में डालो नहीं डालो मेरे को मालूम नहीं, बट लाइक द मोमेंट ही लैंडेड इन द होटल, उसने मैसेज एक ही किया था, प्रतीक भाई क्या बुक कर दिया है आपने, राइट? सो और मेरे दिमाग में भी ऐसा नहीं था. इट्स जस्ट मी दैट यार वो बंदा आ रहा है, मेरा टीममेट आ रहा है. वो टीममेट नहीं है, फैमिली है, राइट? हाँ, वो गलती करते मैं झाड़ देता हूँ, बहुत झाड़ देता हूँ, राइट? बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम इट्स जस्ट मी. So कहीं ना कहीं, I question that. I question for people who are very close to me. अभी मेरे दिमाग में सवाल चल रहा है, ये ख़त्म होने के बाद वो जो मैं बोल रहा हूँ मेरे फ्रेंड का वास्तु है, तो दिमाग में चल ही रहा है वो, क्या मैं और करूँ. Exactly, वो चल ही रहा है मेरे दिमाग में. But I try to balance that. But work, no, never. So even when there are days when nothing is going the way you've planned, you don't question. No, because in my own life, I cannot say for everyone, in my own life, everything which has happened based on my work, whether it is my win or loss, it has happened because of my decision. Agreed. It has happened because of my accountability, right? My team knows that 2022 and 2023 were a little bit dicey years and dip years, but मैंने उनको बोला कि it's not because of my work कि मैं कम कर रहा हूँ, it's because मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पर्सनल टाइम ज़्यादा देना है, राइट? बहुत सारी चीज़ें हुई है फैमिली में. आई वॉज अबाउट टू गेट मैरिड, उसका भी सब कुछ चल रहा था. एंड आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट माई रिलेशनशिप, बिकॉज मैं हमेशा बोलता था कैमरा पे कि आई विल ओनली टॉक अबाउट माई रिलेशनशिप वंस आई गेट मैरिड, और इन फैक्ट आई विल टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स ओवरऑल व्हेन आई गेट मैरिड. सो आई हैव केप्ट माई रिलेशनशिप्स वेरी प्राइवेट. वो एक ही बंदी है जिससे मैंने प्यार किया, उसी से शादी की है. तो मतलब येस, those are the moments where I question a lot and I try to be very cautious. Other than that, work तो मैं बहुत ही आड़े-धड़, because yesterday I told that I execute so fast on 100 different executions that I don't care about my 67 losses. In fact, we were discussing this yesterday. We made a reel, a story
Okay, and you just did this. A boomerang, yeah. Yeah, and it was posted like the minute you came. I was posting it right over here when somebody was introducing me. कुछ चल रहा है. You know, Prateek's already posted something. So it's phenomenal how your mind works as well. But one thing that, I think most audiences have connected with you is about authenticity. And how do you balance authenticity with your strategy? When you are authentic, you actually don't strategize everything. Correct. A classic example, right now I'm sitting over here. Like probably people might not know that I never ask my host to give me questions for the podcast. I'm that raw. I tell these guys, I tell all my hosts, never send me questions कि आपको जो पूछना है पूछो. मैंने भेज दिया. इन्होंने भेजा, इनको रिप्लाई भी पता है, ये अगर पता नहीं ये शेयर करेंगे टीम, पर इनको मैंने क्लियरली बोला मैंने नहीं पढ़ा है, अब जो पूछना है पूछो. एंड आई स्वेयर ऑन माई पेरेंट्स, मैंने अभी भी उनका मैसेज में उन्होंने जो लिखा है ना, मैंने नहीं पढ़ा है, मेरे को पता ही नहीं है वो क्या पूछने वाले. सो आई डोंट स्ट्रैटेजाइज. वाई? बिकॉज आई एम ऑथेंटिक. एंड दैट इज हेल्पिंग मी टू ओवरऑल मैक्रो लेवल पे स्ट्रैटेजाइज अ लॉट विदाउट मी स्ट्रैटेजाइजिंग. राइट, अभी मैं इतना सोचता कि मैं पॉडकास्ट में आज क्या बोलने वाला हूँ, अगर मैंने आपके क्वेश्चन सोचे होते तो मैं शायद थोड़ा सा सोच के आता और मैं रिस्ट्रिक्ट कर जाता अपने आप को कि मेरे को ये इतना बोलना है, ये इतना बोलना है. अब वो पर्सनालिटी मैं नहीं हूँ. सो इफ आई ट्राई टू डू दैट, आई विल फेल मिजरेबली एंड आई विल नॉट बी जस्टिफाइंग दिस टाइम ऑफ योर्स कि मैं डिलीवर भी नहीं कर पाता वैल्यू. सो ये मेरा खुद का तरीका है. वाई? बिकॉज आई नो माई ओन सेल्फ. And that's where self-awareness is very, very crucial. You have to know yourself and it will come in the process. मेरे को day one से नहीं पता था कि मैं ऐसा है. It's now that I self-audit, मैं first standard से self-audit कर रहा हूँ, right? तो मेरे को realize हो रहा है कि हाँ यार, you know, there was this phone Nokia. जब ये आईफोन वगैरह नहीं आया था ना, तो नोकिया में सिस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था. जैसे एंड्रॉयड एंड iOS है ना, वैसे सिस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था. एंड देन दूसरे जो फ़ोन आए उसमें जावा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था. देन केम एंड्रॉयड एंड दिस आईफोन iOS एंड ऑल. सो सिस ऑपरेटिंग सिस्टम जब नोकिया 6600 में आया था ना, तब देर वॉज समथिंग नोन एज विंडोज 98 का रजिडेट एंड ऑल. सो आई वॉज एथिकल हैकर एट दैट पॉइंट इन टाइम इन माई कॉलेज डेज. सो आई यूज टू give seminars on how to remove viruses from your phone manually. Okay. How to build batch files, this and that. मतलब हम कंप्यूटर लैब में जाके कभी कभी मस्ती कर देते थे, बैच फाइल रन कर देते थे, सारी CD ड्राइव ऐसे ओपन क्लोज होती रहेगी. तो ये बस सब भी सीखा था. तो आई यूज टू गिव सेमिनार. आई हैव गिवन वन सेमिनार टू 500 पीपल इन माई कॉलेज डे विदाउट अ PPT. ऐसे स्टेज में खड़ा कर दिया था मेरे को, मैं बोल दिया था. तो now that I self-audit, I know that I'm just this. So if I try to do something which is scripted, या मेरी टीम को ये कभी कभी मेरे को स्क्रिप्ट देते हैं, मैं बौखला जाता हूँ. So मतलब और टेलीप्रॉम्प्टर में बोलना होता है फिर भी. So I have to practice that a lot. But this just goes in the flow. So I don't strategize that much, or I don't worry about strategizing everything. I would say yes, I strategize. I'm a businessman. We have to do that. 1 रुपये डाल रहे हो, 3 रुपये आ रहे हैं या नहीं आ रहे, नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है. We strategize, yes, for sure. Not all the time. Because authenticity will strategize that और ये हो जाएगा flow में. Let me use a brand like yours to really communicate something that you just said to the generation of today. Because at Midas, one of the main things that we focus on is self-awareness. And सबको समझ नहीं आता है कि अगर आपको अच्छा धंधा करना है तो खुद को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. 100%. So, and we do it in a very stimulating, experiential format where रोना धोना बहुत होता है, बट पहले बहुत अवर्जन होती है कि why should I know myself? बॉस ये सब बिजनेस में इसका कोई यूज़ नहीं है, धंधे में इसका कोई यूज़ नहीं है, हमको धंधा सिखाओ, हमको ये सब पर्सनल ड्रामा नहीं सीखना. सो इफ इट केम फ्रॉम यू, probably it will be great for everybody to understand that the person who you are and your business are not two different things. Yeah. It's your business will have a lot of reflections of you. A lot, especially if you are, you know, in the trenches all the time. And something which I've learned from Gary Vee, you're always a firefighter when you're on the top. Correct. And everything, every win and every loss is your responsibility. तो वो चाहे टीम मेंबर का कुछ एडिट ना करना या टीम का कुछ भसड़ मचाना, कुछ भी, इट्स यू, बिकॉज यू हैव हायर्ड देम.
गलती तुम्हारी है। तुम्हारी है गलती। यस, देर आर कॉन्वर्जेशंस बिटवीन यू एंड योर एम्प्लॉयज और योर टीम। कुछ इधर उधर होता है, आप उनको डांटोगे, ये वो फलाना ढिमका सब कुछ होएगा, लेकिन दैट्स लाइक अ फैमिली कॉन्वर्जेशन। फैमिली में भी झगड़े होते हैं, कॉन्वर्जेशंस होते हैं, वापस झगड़े होंगे, वापस कॉन्वर्जेशंस होंगे, बट वो बॉन्ड तो नहीं जाता है ना। यू स्टे एज अ फैमिली। सो दिस इज ऑल्सो सिमिलर थिंग। बट फैमिली में भी अगर पापा का एक वैल्यू होता है, अगर पापा का एक अच्छा है, मम्मा का एक अच्छा है, देन वो बच्चे में आने ही वाला है। दिस इज द सेम थिंग। अगर आप एक बिजनेस फाउंडर हो, ओनर हो, तो आपके नीचे थोड़े वैल्यूज वो पास ऑन होंगे ही। आप चाहो ना चाहो फिर भी वो होंगे। एंड अगर आप स्पेशली ट्रेंचेस में हो तो वो टीम आपको देख रही है कि आप ट्रेंचेस में क्या कर रहे हो, राइट? आप रो चिल्लाओ, जो करना है करो, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, वो देखेंगे। वो तो झक मार के आप ही उनका मोटिवेशन बन जाओगे। एंड वाइल्स्ट यू आर इवन सेइंग दैट, अगर आप सेल्फ अवेयर हो तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत क्विक हो जाती है। बिकॉज यू नो कि भाई मैं ये तो नहीं करने वाला हूँ, ये करूँगा। सो आई थिंक इट्स मच क्विकर टू टेक दोज डिसीजंस एज वेल। What are the three major mistakes young content creators are making today, according to you? Number one, they are trying to push themselves a lot into finding this niche wala thing. And I understand, but वो लोगों को पता ही नहीं है कि brand deal is not the only monetization thing which you can, right? मतलब आप अगर niche कर रहे हो, और then a lot of coaches and course sellers, वो लोग बिकॉज कोर्स सेल करते हैं, कोचिंग करते हैं, तो वो नीश के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। अब आप एक रिटेल स्टोर के फाउंडर को बोलते हुए नहीं सुनोगे कि फाइंड योर नीश। नो, वो बोलेगा कि ये बेचना कैसे है, राइट? सो बट दोज काइंड ऑफ पीपल आर लेस एज कंटेंट क्रिएटर। सो दैट इज द रीजन व्हाई टुडेज वर्ल्ड इज फिल्ड विद दैट फर्स्ट मिस्टेक, दैट दे आर स्पेंडिंग टू मच टाइम इनटू फाइंडिंग देयर नीश without knowing that they are, whether they are trying to do for brand deals, yeah, whether they are trying to do some other business, whether they are trying to have exposure for something they will do in future after 6 months, what? उनको वही नहीं मालूम है। सो वो आड़े धड़ किसी को सुन के फाइंड नीश, मेरा नीश क्या है, मेरा माइक्रो नीश क्या है, मेरा लेजर टारगेटेड नीश क्या है। अरे भाई छोड़ दो यार, लाइफ इज योर मैक्रो नीश, खत्म बात। लाइफ इज योर मैक्रो नीश। बैडमिंटन पसंद है, बैडमिंटन के बारे में बात करना शुरू कर दो, राइट? सो दैट इज व्हाट फर्स्ट। सेकेंड मिस्टेक इज ऑब्वियसली वो नीश के चक्कर में वो एल्गोरिथम को समझना बहुत क्रैक करने का ट्राई करते हैं। व्हाट आर द 5 हैक्स, व्हाट आर द 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड थिंग्स लाइक दैट। उससे अच्छा है व्हाट यू आर, ट्राई करो कि व्हाट यू आर गुड एट क्रिएटिंग, राइट? इज इट वीडियो, इज इट टेक्स्ट, इज इट इमेज, इज इट ऑडियो, एंड देन एटलीस्ट डू इट फॉर 90 days। भाई 3 महीने तो दे दो खुद को। If you cannot give yourself 3 months in doing something consistently, how will you be able to do consistently something else? So वो आपको जो सिखाएगा, consistency सिखाएगा, patience सिखाएगा, and if somebody is doing that as well, तो तीसरी mistake जो है, they start comparing. They start comparing on the 13th day itself, and कोई तो दूसरी दिन, मतलब पहला ही पोस्ट किया है तो क्या करेंगे, पहला पोस्ट होता है ना, तो नॉर्मली नए पेज वाले क्या करेंगे, अपने फैमिली ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर कर देंगे, हे आई हैव स्टार्टेड दिस पेज, आई हैव स्टार्टेड दिस वे, बोला ये मेरा पहला है, ये मेरा पहला है। तो यारी दोस्ती के चक्कर में या फैमिली के चक्कर में सब लोग लाइक करेंगे, सब लोग शेयर करेंगे, तो वो पहले पीस ऑफ कंटेंट में क्या होगा, ज़्यादा एंगेजमेंट आ जाएगा। अब दूसरे तीसरे में भी वो शेयर करेंगे, वो दूसरे तीसरे में भी बोलेंगे हाँ अच्छा है, चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वो शेयर नहीं करेंगे, फिर नहीं करेंगे। चौथे पांचवें में वो देखना बंद कर देंगे। वो उनको क्या लगेगा फिर, यार मेरा कंटेंट नहीं चल रहा है। नहीं, आपका कंटेंट डे 1 से नहीं चल रहा था, वो तो फैमिली ने चलवा दिया, फ्रेंड्स ने चलवा दिया। वेट फॉर द एक्चुअल ऑडियंस टू फिगर आउट या फाइंड आउट। वो एक्चुअल ऑडियंस आपको डिस्कवर तो कर दो, बिकॉज yesterday when I taught you the algorithms have changed. It doesn't matter whether you have 0 followers or 1 million follower. You can post right now, and if that is relatable, that is contextual, Instagram will start pushing it out to 5 to 10% of the actual probable audience. And if it is more engaging to that audience, it will start populating more. I showed the practical examples as well yesterday, right? And another classic idea, like कल ही मैंने इनको दिया था, once again I am saying that, start a brand new page which says, whatever your name is, let's say my name is Prateek, and I'm known as Digital Prateek, so I'll start a new page, Digital Prateek dislikes this today, right? That would be the user ID, and every day I'll just talk about what I dislike, but then I'll try to provide some value, right? So I'll say I dislike
having scripts for my videos. That's where I always keep raw. But that is because I'm self-aware about my strengths. So if you are a person who needs script, then try to have scripts. If you are a person who is raw, don't try to have scripts. Just document. Hope you like this, what I dislike. That's it. I'll see you tomorrow. This is how you can start. Just remain consistently doing that. Yeah. तो उससे आपको पता चलेगा दैट आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि आई एम गुड एट दिस. मतलब एक वेरी सिंपल एग्जांपल, आज जो जेंजी है, बहुत सारे जेंजीज को फैशन के बारे में बहुत पता होता है. एंड इफ यू लिटरली सर्च फॉर राइट नाउ 20 जेंजी ट्रेंड्स इन टुडेज वर्ल्ड, you will get a lot of things, right? And these guys have different clothing, style, सब कुछ सबको पता होता है. अब सबको अंदर से ये भी होता है कि, और कोई अगर बंदा है वो एकदम अच्छा दिखता है, कोई बंदी अच्छी दिख रही है, उनको अंदर से भी होता है मैं तो फैशन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. वो 90 दिन करो, फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या कितना अच्छा बुरा है. तब जाके आपको पता चलेगा. सुल्तान का एक डायलॉग है, सलमान खान का मूवी है, उसमें जब वो ज़िद पकड़ते हैं और झगड़ा हो जाता है और फिर वो जाते हैं जब, और बोलते हैं कि मेरे को कंपटीशन में डालना है, तो वो बोलते हैं कि मजाक कर रहा है क्या. एंड वो फिर लड़ते भी है और वो हार जाते हैं वहीं के वहीं. तो वो पूछता है कि हो गई कसर पूरी हो गई. तो सलमान खान तब बोलते हैं मैं आज इसलिए आया था क्योंकि अपनी औकात पता चले, 1 महीने बाद वापस आऊँगा ताकि मैं अपनी औकात बदल सकूँ. राइट. सो आप 90 दिन करोगे ना, आपको अपनी औकात पता चलेगी. नॉट इन अ बैड सेंस, इन अ वेरी ट्रू सेंस कि वेयर डू यू स्टैंड इन द मार्केट में, बिकॉज द प्रैक्टिकल वर्ल्ड इज वेरी वेरी हार्श. मतलब वॉट एवर यू हैव बीन टॉट ओवर हियर और वॉट एवर यू विल बी लर्निंग आउटसाइड इन द वर्ल्ड फॉर 30 days, कुछ नहीं है. 90 दिन एक चीज़ को पकड़ के कुछ करोगे ना, तब जाके मार्केट का पता चलेगा आपको कि यार मार्केट इज सो टफ, इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव. कुछ भी कर लो, अगर कुछ बड़ा करना है इट्स नॉट ईजी. इफ इट वॉज एवरीबडी वुड हैव डन दैट. सिंपल. सो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. 90 days, आई हैव बीन सेइंग दिस सिंस पास्ट 10 years नाउ, ऑलमोस्ट अ डेकेड, मोर देन डेकेड. कंसिस्टेंसी 90 days, कोई भी एक चीज़ को दो, फिर डिसाइड करो वेदर यू आर गुड एट इट और नॉट, बिकॉज आपको ऑडियंस बता ही देगी. That's how it is. And you're also known for being a person who builds communities, and Jol Parivar is something that's really doing extremely well. How did that come into your mind, and now everybody's, joining you in the community? What is it? So it was this Web3 thing which started in 2021. Obviously Web3 is since long, but 2021 में इंडिया में और ग्लोबली NFTs का दौर आया, नॉन फंजिबल टोकन्स, राइट, कंज्यूमर ब्लॉकचेन, ये सारे टर्म्स आए, NFTs, बिटकॉइन, इथेरियम, एंड जस्ट लाइक आई सेड, लर्न अप्लाई शेयर. मैं तब तक नहीं बोला था जब तक मैंने खुद ने नहीं किया. So April 2021, I bought my first ever investments in Bitcoin, Ethereum. मेरे को कुछ पता ही नहीं था तब तक. Right? Gaurang Desai, one of my friends who was doing this since 1 year at that point in time, he told me, प्रतीक भाई मैं आपको जानता हूँ, आप ये कर सकते हो. So ये सब चीज़ें कुछ मटीरियल है, आप पढ़ लो एक बार, आपको इंटरेस्ट हो तो फिर अपन बात करते हैं. तो that's how he started guiding me a little bit at that point in time, and मैंने अपना शुरू किया. The first purchase which I did was .eth domain. Ethereum name service होता है वो .eth domain. तो digitalpratik.eth, मैंने उसको 176 ईयर्स के लिए बुक किया हुआ है. दैट्स हाउ मच आई एम सीरियस अबाउट, कि मैं मरने के बाद भी मेरे को मालूम है को जनरेशनल वेल्थ देने वाली है. दैट्स, मैं इतना बता देता हूँ. मतलब ये छोटा सा चीज़ है जो मैं कंज्यूमर ब्लॉकचेन में मैं बोल रहा हूँ कि इतना मैं सीरियस हूँ उसके बारे में, वो टेक के बारे में. भले अभी थोड़ा माहौल ठंडा है इंडिया में ग्लोबली, बट ये कंज्यूमर ब्लॉकचेन इज़ गोना बी वेरी वेरी बिग थिंग, स्पेशली जितना AI बढ़ रहा है. राइट, ये अभी इतना टेक्निकली मैं समझा नहीं पाऊँगा बिकॉज वो बहुत डीप है, बट इन सिंपलेस्ट फॉर्मेट्स तब मैंने कुछ 400 जितने NFTs 3-4 महीने में खरीद लिए. आई इन्वेस्टेड माई मनी, आई इन्वेस्टेड इन गैरी वेनरचक्स प्रोजेक्ट्स एवरीवेयर, एंड आई स्टार्टेड लर्निंग. एंड बिकॉज आई एम अ कम्युनिटी गाय सिंस डे वन, मैंने सोचा कि मेरे को वो फ्लिपिंग प्रोजेक्ट वाला नहीं करना है, मेरे को खरीद के वो बेचना नहीं, बिकॉज आई एम नेवर ए ट्रेडर. मैं स्टॉक्स नहीं खरीदता, मेरा सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला है. आई हैव नेवर बीन ए डे ट्रेडर. सो मैंने वो जो भी किया लॉन्ग टर्म के लिए किया, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज दैट दिस कैन बी यूज्ड फॉर मार्केटिंग एज वेल. And because I am a person who does marketing which works in the now, so at that point in time, in the now was utility based NFT projects through which you can build communities. So I started learning. There was ERC-721 consumer blockchain पे, Ethereum पे gold standard का एक था वो smart contracts बनाने वाला.
तो उस पर हमने पूरा प्रोजेक्ट, बहुत खर्चा हुआ, वो प्रोजेक्ट बनाया एंड देन वी लॉन्च्ड आवर प्रोजेक्ट इन August 2021. Okay. And to do that, for 1 month, I did free Zoom calls. वो फ्री जूम कॉल्स कैसे थे? मैंने एक शॉपिफाई स्टोर बनाया, उसमें 100 टी शर्ट्स मैंने खाली बेचे, 100 टी शर्ट्स विद डिफरेंट कोड्स, ब्रीदिंग एंड लिविंग, ग्रैटिट्यूड एंड ऑल, लिमिटेड टी शर्ट्स. एंड आई हैड दिस ऑफर फॉर जस्ट 1 month that buy 2 टी शर्ट्स and get 30 days Zoom Q&A session with me for free. Okay. So almost like 100 people, 100 t-shirts were sold and there were 56 people जिन्होंने combine करके वो लिया था. Out of that 40 people used to come on 9 PM call every day for 30 days. अब आप सोचो, हर रोज़ अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो डिनर करने के लिए 9 बजे, हर रोज़ आप 1 घंटा बात कर रहे हो, आपका बॉन्ड जो बनेगा ना एक नेक्स्ट लेवल पे होगा. दैट वॉज द एग्जैक्ट थिंग विच वॉज हैपनिंग ऑन जूम कॉल. तो मैं उनको यही बता रहा था कि व्हाट आई एम डूइंग इन NFTs, व्हाट आई एम डूइंग इन कंज्यूमर ब्लॉकचेन, व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई हैव एक्सेस टू, राइट. तो उनको भी दिमाग में जा रहा था वो. एंड दैट्स हाउ आई गॉट एन आइडिया दैट लेट मी डू इट. एंड देन आई रजिस्टर्ड 22 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वो ट्रेडमार्क लिया है, ट्रेडमार्क के ऊपर हमने NFTs बनवाए और फिर उसको लॉन्च किया. सो इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन प्रोजेक्ट एंड देन इट्स अ फॉरएवर प्रोजेक्ट. तो अभी भले ही वो Web3 ऊपर नीचे है, हाँ एग्जीक्यूशंस कम होंगे, इट्स नॉट एंड, राइट. people might seem that NFTs have ghosted them, but I'll be fucking right back at you for you. So Right. are these the challenges that you're facing? Yeah. Creating a business through a community. Not through community, because of the lack of some regulations with respect to Web3 in India. Got it. एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं आज भी बोलता हूँ ना NFTs है. दुबई में, ऑलराइट, दुबई में यू कैन बाय रियल एस्टेट, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट यूजिंग ब्लॉकचेन करेंसी विच इज XRP, रिपल, विच इज 3rd or 4th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड राइट नाउ. इतना लीगलाइजेशन दुबई में है. वहां पर रीडॉट पे करके एक ऐप है. दे गिव यू वर्चुअल कार्ड्स, वर्चुअल क्रिप्टो कार्ड्स, which you can fund through USDT, which is Tether, cryptocurrency. So you can fund that and you can use with Apple Pay everywhere. यहाँ पर कुछ नहीं है. So even if in India I tell you that हाँ NFTs है, लोग मेरे को पूछना शुरू करेंगे ना कहाँ से ले, मैं बोलूँगा ये स्टेप है. अब वो स्टेप में जो 3-4 स्टेप होते थे पहले, इंडिया में हो ही नहीं रहे. When do you think it'll happen? I don't know. And do you think it'll happen? For sure. And that's what you're bagging on? 100%. So all... That's, see, just I'll take a second over there. Please. Just look at what I did, 1-word answers to those 3 questions. I'm that damn sure about things. I'm never half pregnant. Either I know it or don't. Right? That's it. So I have that clarity. Right? And then obviously it's business, it's work. You are not God. तो आपको पता नहीं होगा 50 साल के बाद क्या होने वाला है. यू जस्ट गिव, यहाँ से ऊपर वाला उठा लेगा अगर यहाँ से गलत किया मैंने. आई एम वेरी वेरी प्योर एट वॉट एवर वर्क आई डू और वॉट एवर आई थिंक फॉर द कम्युनिटी. अगर मैं आज कुछ बोल रहा हूँ, मैं शिद्दत से बोल रहा हूँ कि ये है, प्लीज़ इसको यूटिलाइज कर लो. अगर 3 साल के बाद नहीं होगा तो वो मैं नहीं चाह रहा हूँ इसलिए नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं नहीं चला रहा हूँ ना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में तो ये नहीं है, अभी रेगुलेशंस नहीं है. CoinDCX, WazirX एंड CoinSwitch Kuber वर द टॉप 3, आज मेरे को पता नहीं है, बट टॉप 3 एक्सचेंजेस एट दैट पॉइंट इन टाइम. और उसमें से लोग इथीरियम या कुछ भी खरीदते थे और वहाँ से वो लोग कस्टोडियल वॉलेट, जो कि मेटामास्क कहलाता है, कस्टोडियल वॉलेट में वो भेजते थे. उसको वो जो भेजने का प्रोसेस है ना, वो ये तीनों एक्सचेंज ने अभी बंद कर दिया है. सो आप NFT खरीदोगे कैसे? मतलब ये वैसी चीज़ है कि मेरे पास कैश में पेमेंट है, मतलब मेरे पास कैश अमाउंट है, लेकिन ट्रांजेक्शन्स मेरे को कंपलसरी गूगल पे से करने हैं. अब गूगल पे में मैं करना चाहता हूँ लेकिन बैंक में पैसे ही नहीं है. मेरे पास पैसे है लेकिन बैंक में नहीं है ना, तो मैं खरीद सकूँगा कुछ? नहीं खरीद पाऊँगा. दैट्स द पॉइंट. सो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, NFTs in India went down. Plus 90%, I'm not exaggerating if I say 95%. 95% of the people who bought NFTs were trying to buy NFTs just like stocks. कि मैं आज ये प्राइस में खरीदता हूँ, कल ये प्राइस में बेच दूंगा, फ्लिप करूंगा, फ्लोर प्राइस. ये वो मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, भाई मेरे NFTs को फ्लोर प्राइस की वजह से मत लेना.
ये यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पर हम इवेंट्स करेंगे, यहाँ पर मैं मंथली जूम Q&A सेशंस करूँगा और मैंने सब किया. We threw India's first NFT ticketed event in 2022 and all the people whom you are following just came over there because of the relationships which I had built, right? तो वो जब हो रहा था तब सबको मज़ा आ रहा था, बट आज पूरे इंडिया में लोग ये नहीं समझ रहे ना क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है. बट that's the part which you have to do as a founder, right? No, So the part that I was coming to was also that what is the secret sauce? Because everybody seems to believe in you, right? Even though the entire system is saying ये नहीं हो सकता है. Yeah. How are you convincing that? so it's not, I never convince. So you're authentic. Exactly. This is what it is. अभी भी मैंने क्या बोला? This is what it is. I'm not trying to convince. गाली दो मेरे को चलेगा. 5 साल के बाद आप तारीफ करोगे, ये मेरा गारंटी है. क्योंकि मैंने आपकी ज़िंदगी में गलत करने के लिए कुछ नहीं बोला है. मैंने अभी कोई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अभी को कभी भी कुछ नहीं बोला था. राइट? सो मैं जब तक वो नहीं करूँगा ना, तब तक मैं यहाँ से प्योर हूँ. मतलब people close to me in this project and my team and every friend of mine, they know that how much loss I have taken just to maintain the community. ये .eth डोमेन जो होते हैं ना, वो .eth डोमेन मेरे टीम को मैंने सबको फ्री में दिलवाए थे अपने खर्चे पे. एंड 2021 दिवाली पे कुछ वो टोकन्स आए थे ना, पैसा आया था 2021 में या 2022 में देर वॉज दिस, जैसे लेट्स सपोज अगर कंपनी का डिविडेंड आता है ना, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में डिविडेंड होता है, राइट? तो वैसे ही .eth डोमेन जिनके पास थे ना, तो उनका एक टोकन लॉन्च हुआ था जिसकी वजह से डॉलर्स में पैसे आए थे जिनके पास डोमेन्स तब थे. My team members got $1,500 to up to $10,000 of income just because I had bought their .eth domain for their MetaMask. अब ये सारी चीज़ें मैं बताता नहीं हूँ, बट जस्ट बिकॉज वी आर कॉन्वर्सिंग, मेरे को ये सब बता के मेरे को अच्छा नहीं बनना है. बट वही है कि मैंने आज तक किसी के लिए गलत नहीं किया है, गलत सोचा नहीं है. तो मेरे को मालूम है कि 5 साल के बाद अच्छा होगा, कुछ 10 साल के बाद अच्छा होगा. अभी नहीं हो रहा है, तिल लेने गया. Because it's not in my hand. So I don't want to control things which are not in my hand. Yeah. I don't want to convince for those things which I cannot control. That's it. What would you sort of call this entire journey? So would you call yourself a visionary? Because you're thinking way beyond a lot of years in most cases that I'm hearing from you. I don't feel, I'm a little bit uncomfortable in putting up words against my name, but I don't know. Trust me. I am saying it for you. I'm super grounded right now and humbled for those words. Thank you so much. But I don't know. It's प्रतीक, before time करने वाले बहुत कम होते हैं. Before time करके stick on करने वाले बहुत कम होते हैं. And then end में to even celebrate what they have created over the last few years, वो भी बहुत कम होता है. So I know that you'll even get to the I'm thankful. part of I'm it thankful. as well. If you were to sort of give me a vision on the fact that will YouTube continue more or Instagram, where should content be posted more? I cannot say on the platform names, but I can say, you have to understand one thing. Google has ruled the search engine since past almost 27 years or something, not exactly knowing, but almost like 2 to 3 decades. All of a sudden Perplexity comes in, ChatGPT comes in, Claude comes in, and Google search engines are down by almost search engines down here, searches are down by 40-60%, right? Who knew? Everybody knew, everybody thought that they would die when Google would be top. So disrupt हो गया. कभी भी tech, all I can say is on the macro level, AI, consumer blockchain are going to be very huge, very huge. So next 5 years, is that what you're looking at? But we are looking at AI right now. I know. And consumer blockchain and things like that, which I'm seeing in other countries right now, the way their applications are happening, it's going to be massive. बिकॉज मतलब AI है, ठीक है. कल ही हम AI का पूरा सेशन कर रहे थे, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन इंसान सही है, फेक है या रियल पर्सन है, हमको नहीं पता चल रहा है ना. सो कल सुबह उठ के लेट्स सपोज ये मेरा जो फुटेज है 2035 में, दिस फुटेज
would be actually on consumer blockchain. And somebody who is consuming would be seeing whether it is on consumer blockchain or not. Only then it would be authentic digital pratik. That's how huge this is going to be. So Because do you because bet videos on would be. this entire trend now? I am. You are. I'm already. I was betting it. That's the reason why in 2021 I launched the project. Agreed. But consumer blockchain, utility based, community driven, never flipping. मैंने इसलिए आज तक मतलब कल भी मेरे को स्टूडेंट्स में से एक बंदे ने मेरे को पूछा था दैट सर हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन, व्हाट इज़ योर नेट पोर्टफोलियो राइट नाउ, व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस ऑन विच योर पोर्टफोलियो स्टैंडिंग. आई एम लाइक मेरे को पता है मैं बताऊंगा नहीं. The only reason is I'm little uncomfortable sharing the money part, but I know that this is so huge that you should get into it as much you can. क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ लेट्स सपोज वो बोलते हैं ना कि मंथली एसआईपी कितनी होनी चाहिए किसी की. अब मंथली एसआईपी किसी की कितनी होनी चाहिए उसके लाइफ पे डिपेंड करता है. मैं बोलूँगा 1 लाख रुपए पर मंथ होना चाहिए, 2 लाख रुपए पर मंथ होना चाहिए. आप बोलोगे मेरी सैलरी इतनी नहीं है. इसलिए तो मैं बोल रहा था कि मेरे को मत पूछो, क्योंकि मेरी सोच आज के टाइम पे इतनी होगी तो मैं कॉन्टेक्चुअलाइज कर ही नहीं पाऊंगा, जबकि आपकी लाइफ मेरे को पता नहीं है. सो आपके लिए शायद 500 रुपये की एसआईपी भी पर मंथ सही हो सकती है, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू डू समथिंग. काना मामा करता न मामा करता काना मामा सारा इन गुजराती वी से, राइट? सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव समथिंग दैन नथिंग. सो स्टार्ट इन एनीथिंग विच यू डू, स्टार्ट एंड ऑन दिस फॉर श्योर स्टार्ट. कल से मैं तो बोल ही रहा हूँ AI है, इम्प्लीमेंट करो तब तक पता नहीं चलेगा. वो इम्प्लीमेंट अगर आप 1 साल 2 साल के बाद करोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार आई एम नॉट एबल टू कैच अप. व्हाई? बिकॉज 2 साल वेस्ट कर लिया ना आपने सोचने में. दैट्स द पार्ट. कंज्यूमर ब्लॉकचेन अभी इतना नहीं है ये वो, बट स्टार्ट लर्निंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ग्लोबली, क्योंकि ग्लोबली आने वाला है. इंटरनेट इंडिया में नहीं है, इंटरनेट ग्लोबली है. AI इंडिया में नहीं है, इंटरनेट AI सब में है. कंज्यूमर ब्लॉकचेन इज गोना बी द सेम थिंग. मतलब आई वॉज ब्लोन अवे व्हेन इथीरियम नेम सर्विस के वो टोकन्स डॉलर में आए मेरी टीम को. वो दिवाली पे आए थे एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार दिवाली बोनस जैसा ये तो आया, और हमको पता भी नहीं था कि ये आएगा. सो इट वॉज मतलब आई एम बेटिंग दैट बिग, इट इज़ दैट बिग. मैंने डिजिटल प्रतीक wife.eth ले रखा है, मेरे भतीजे का मैंने ले रखा है, મારા ભાણિયાનું મેં લીધેલું છે. માય ફેમિલીઝ નેમ ઇઝ ઓલ્સો રજિસ્ટર્ડ, માય વાઇફ્સ નેમ ઇઝ રજિસ્ટર્ડ. I have almost 70+ .eth domain worth $15,000. I've invested almost $15,000 in buying all those things. So I'm betting big. So I always believe that you're someone, in my opinion, a very habit-driven person. So what is that one habit that you won't compromise on? Discipline, consistency. Like I've been in Pune right now since past 4 days now. आज चौथी है ना? हाँ, 4 days now. And I'm not able to do my workout. So I'm a calisthenic practitioner. तो मैं वो डोले शोले ऐसा नहीं बनाता हूँ इतना, बट आई एम वेरी longevity driven. तो मैं बायोलॉजिकल एज पे बहुत फोकस करता है. वेयर दिस वूप एज वेल. सो समवेयर डाउन द लाइन पास्ट 4 days से मेरा वो कंसिस्टेंसी नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल में है, वो तैयारियाँ चल रही है, ये वो, प्लस किसी के घर पे जाते हो तो यू कैन नॉट लिव अकॉर्डिंग टू योर ओन हैबिट्स. बट स्टिल व्हाट आई ट्राई टू डू इज़ आई ट्राई टू डू द मिनिमम हैबिट और द मिनिमम रूटीन, कि अगर सुबह उठ के मैं कुछ चीज़ें कर सकता हूँ. एग्जाम्पल, द वन थिंग विच आई डू एवरीवेयर इज़ आई ट्राई टू डू 1 to 2 minutes of exercise before my 2 meals. लंच एंड डिनर जो होता है वही हैवी मील हमारा होता है थोड़ा, तो उस 2 के पहले मैं 1 या 2 minutes का कोई एक्सरसाइज करता. इट कैन बी 30 squats, इट कैन बी 30 to 50 push-ups, it can be anything which increases my heartbeat, because it will help you to not shoot your glycemic index post your meal. सो वो आपको लॉन्जिविटी के लिए बहुत हेल्प करेगा. तो ये चीज़ है. अब ये मेरे दिमाग में मैंने डाल दी है कि मैं होटल में भी हूँ, तो जब खाना सर्व हो रहा है ना, तो वॉशरूम में जाके आप पुशअप कर सकते हो, वॉशरूम में जाके स्क्वाट कर सकते हो आप, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. सो वो हैबिट मेरा मतलब बेयर मिनिमम है. अब वो मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से मेरा हैबिट है. यहाँ पर जितनों ने ये सुना है
मोस्ट प्रोबेबली 90% माइट थिंक ये क्या, ये भसड़ गया है बे खाने से पहले। लोग बोलते हैं खाने से पहले हिलना नहीं डुलना चाहिए वरना वो पाचन नहीं होगा, ये तो कंप्लीटली उल्टा बोल रहा है, राइट? That's how it is. This is based on my lifestyle. So yeah, pick 1 or 2 minimum which you can do anyhow and form a habit of doing that no matter what. So this is one of them. Baki to yaar, whatever we try we cannot. Like since I currently my sleep pattern for my sleep consistency and my longevity is I sleep at 2:30, I wake up at 9. बट ये पिछले 4 दिन से आई एम स्लीपिंग फॉर ओनली 3.5 hours. आई स्लीप एट 4:30, आई वेक अप एट 8, 7:30, बट स्टिल वो शक्ल पे नहीं दिखेगा, बिकॉज दैट्स हाउ मच यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, राइट? प्लस यू विल नेवर सी मी ईटिंग, नेवर ड्रिंकिंग एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट वाटर. सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैबिट है मेरी, बट वो दिखती नहीं है वो हैबिट के फॉर्म में. I wanted to also ask you, how do you handle criticism online? There is nothing to handle about criticism. वो है उनका नज़रिया है. I said that, right? It's if I'm okay fine. वो क्लासिक है ना कि ये बॉटल आधी भरी हुई है या आधी खाली है. कोई एक आंसर आपका आएगा. अब मैं दूसरा आंसर बोलूँगा, दोनों ही सही है. So it's the same. It's the same. If somebody is criticizing me, it's just मैं ऐसा दिमाग में डाल देता हूँ, it's just an English dictionary में एक word criticism जो उनको आ चुका है और मेरे को वो डिक्शनरी का वर्ड नहीं पता चलता है. So if somebody is criticizing me, again coming back to that point that मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. Why? Because deep down in my heart I know that मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने गलत नहीं किया है. हाँ, वो गैस स्टव अगर चल रहा है और गलती से आपका हाथ वहाँ चला जाता है तो वो जलेगा. आप गैस स्टव को ऐसा बोल नहीं पाओगे एक गलती से मेरा हाथ आ गया, मेरे को जला मत, राइट? सो अगर अनइंटेंशनली भी कुछ हो जाता है तो उसका आपको कर्म किए या फल की चिंता छोड़, तो कर्म अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ है तो क्रिटिसिज्म के फॉर्म में कुछ आ रहा है, वैसा मैं सोच लेता हूँ अनइंटेंशनली. बट इंटेंशनली स्टिल टू दिस डेट आई हैव नेवर डन एनीथिंग रॉन्ग फॉर एनीबडी. So that doesn't bother you. It doesn't. It doesn't. How do you remain grounded after being a star? No, I'm not. By not thinking that you're a star. That's the answer. You're just a normal human being trying to live your life extraordinary, and that's it. And one of the last questions I wanted to end today, before my rapid fire, I wanted to ask you about your wife. Nobody's ever probably heard much about her. I've seen her a lot on Instagram. We have started a new page for that, just for fun. Yes. So would you share something about her to the audience? We would love to know more about her. पहली बार Because she's we have known each other since 2013, June 2013, and I had nothing when she was here, and sorry I couldn't talk about that. So she's just for me. And I see you got emotional, so that says it all. Thank you for sharing this vulnerable side with us as well, and I would love to meet her. She seems like a very fun person. She is. Yeah. She is. And she's a little bit opposite to me, and that's where opposite poles attract, I guess. She is not that much extrovert as what I am, but she had everything. She comes from a very good family when I had nothing. मतलब मैं शायद हम लोग एक दूसरे को देखे जाने तब मैं शायद 11-12 हज़ार रुपये कमा रहा था, एंड वो अहमदाबाद के अल्फा वन मॉल में 5-10 हज़ार की ऐसे ही शॉपिंग करके आती थी. सो एंड शी हैज़ हेल्प मी अ लॉट विथ रिस्पेक्ट टू मेंटल सपोर्ट, एंड शी नेवर थॉट दैट हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये वो. इट जस्ट हैपेंड. पीपल अराउंड अस एज वेल नेवर थॉट ऑफ अस एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. नेवर. I don't know why, but her friends used to save my number as PC, Pratik C. Chudasma, or Jiju, and we were always kind of husband-wife, and we never were like girlfriend. मतलब मैंने उनको कभी propose नहीं किया. She has never proposed me. Never happened. Never. जो normal things होती है ना, एक we have never gone on dinner dates. Never. जब family में सब कुछ sort out हो गया and
शादी की बात आगे बढ़ी एंड दैट पॉइंट इन टाइम लास्ट ईयर फॉर द फर्स्ट एवर टाइम वी वेंट आउट फॉर डिनर. फर्स्ट टाइम. When did you all get married? December 2024. 2024. फर्स्ट टाइम मैंने उसको गिफ्ट दिया उसका बर्थडे का. नेवर नॉर्मल जो थिंग्स होती है ना रिलेशनशिप में हमने कभी किया ही नहीं है. एंड दैट्स वेयर प्रोबेबली अवर रिलेशनशिप इज़ दैट प्योर दैट वो कभी भी मटीरियलिस्टिक थिंग्स पे या एक बॉय के फिनेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं हुआ वो. इट जस्ट हैपेंड एंड उसने पूरा जर्नी देखा. शी स्टेड विथ मी. Lovely and congratulations. And it's not been very far that you've been married. I think. Yeah, 9 months. I guess अभी होगा. Amazing. It's great to see that someone stood by you no matter what, and to have that person. And she is the first girl which I loved. And मैं हमेशा मतलब मस्ती करता था सब लोगों को या तो इसके साथ शादी करूँगा या तो सलमान खान रहूँगा. And I got married. So on that emotional yet a fun note, I would want to go into the rapid fire round. Bring it on. Okay. So the first question is Instagram Reels or YouTube Shorts? YouTube Shorts. One word your friends use to describe you. Bapu. Bapu. If not content, what career would you be in? Speaker somewhere. Teacher. Teacher. Morning person or night owl? Both. Depends on the situation. One book that changed your mindset. The Magic, I guess. Your guilty pleasure snack. कुछ तो होगा यार ऋतिक. सिर्फ पानी बोल के नहीं चलेगा. Nothing in the recent times, but पहले मैं मोने को बहुत खाता था. मोने को सॉस डाल के वो मोने को टॉपिंग्स टाइप्स बहुत करता था. A real idea that you wish you thought of first. Real idea? Nothing. Whatever I've thought, I've done. One thing you can't live without. My wife now. Biggest turn off on social media. Biggest turn off? Yes. On social media? Nothing. Nothing? Nothing. I love everything about social media. It's just the lens which I have. Most underrated Indian creator right now. It's a difficult one for me. Why? Because I don't consume that much. I'm busy creating and documenting that I don't create that much. But I met my dear friend right now recently, like 4 days ago, Suhani Shah, and we were discussing a couple of things. And just wait and watch. She's coming up with a lot of good content. So I believe she might just pop up in a very different way if she does that. First, And I'm extremely sorry. I know this is rapid, but I have to give context because I just took her name, and she's an offline Rani, like she's a stage queen, and because of COVID, she did all this online thing, right. right? So whenever she does crazy stuff. So because of that, I'm saying her name, even though she's already a big creator. I'm saying her name that she's underrated at that level. Got it. At that level. She can achieve so much more. Definitely. First thing you do after waking up. I drink water and I stand on my प्राणामत करके एक मैट आती है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा खड़ा रहता हूँ because यहाँ से वो blood flow. So I First response. first. And obviously I feel that gratitude. वो automatic हो जाता है. Like when I'm standing, I feel gratitude about my legs. I'm able to stand. A lot of people are not. So it's just, I'm so happy and grateful now that the gift of health is keeping me alive. That's it. One failure that makes you smile. Failure. College drop. Not able to have degree because I tried thrice. Now you do smile and in fact I smile, I smile. I mean, recently one of our professors called me and he's so happy about me. So yeah. Amazing. I'm sure those colleges will call. We will have to. They do, but I don't go because it would serve a wrong message to that college. What's your lock screen wallpaper? Right now, Wake Up and Crush It Wake up and crush it. of Gary Vee. Nice. Coffee, chai or Red Bull? I used to drink Red Bull when I used to drive. Chai मैं पीता नहीं हूँ. Coffee at times, very very few, but black coffee. Alright.
A brand you would love to collaborate with. Nike Okay. Nice. and Whoop. If you could have dinner with any three people, dead or alive, who would they be? I would go with the dead one because alive तो है ही तो मैं कभी भी कर सकता हूँ. Dead would be my grandfather, my nana and my nani. These are the three people. Most used emoji on your phone. Most use वो ऐसा shy वाला होता है ना, यहाँ से ऐसा वो it's like smiling, not laughing, but यहाँ से ऐसा shy, लाल लाल ऐसा हो जाता है ना, वो टाइप का. One content hack nobody talks about. Be authentic. Don't find your name. Be authentic first. Your face changed. If Digital Pratik wasn't your name, what would the stage name be? Stage name Pratik Kumar. In one line, your ultimate life mantra. Try to live your life every single day in your own version of extraordinariness, and try to be jordar for people around you. That's it. Yes, can we have a round of applause? बहुत मजा आया. It was Thank you so really fun knowing all sides of you. Now I have spoken a lot of things which I've never spoken. Almost 30%. I've never spoken about it. I'm glad that this was one place that. And I'm glad I didn't see your message. But no, trust me, वरना ये rawness नहीं आएगा वो. True. If you know that you have to speak about things, आप act करोगे. नहीं, मैं smart हूँ, मैंने wife का कुछ डाला नहीं था. I don't even know that, right? So it's just No, but it's that. amazing that without any context, you could, बोलते नहीं, you are a raw person and you are actually. I'm living by nailing it. I'm living by it. The last few hours of really recording Pratik have been truly special for me. Laughing, learning, experiencing, and of course being emotional as well. I think that's what makes him really authentic and genuine at heart. Sometimes we don't understand who people really are till we meet them, till we understand them and experience them as well. So for me, this has been a very, very enriching experience of learning from Pratik. Please share in your comments how you understood or want to learn more about this entire concept that Pratik has been talking about. I would really request each one of you to subscribe, to comment, to share this channel for more entrepreneurs who would want to learn and understand through insights that Midas is providing. Thank you and have a good day.